Hello students, how are you all? So students of 8th class, let's get start our next poem, The Way Through the Woods by Rudyard Kipling. So first of all, I would like to tell you something about the Rudyard Kipling. Actually, he was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He was famous for a wide range of works including The Jungle Book, Kim, and The Man Who Would Be King. He was the first English language writer to be awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. And this poem is actually a part of Kipling's collection of short stories known as Rewards and Fairies. The poem simply describes the abandoned land in the woods, abandoned road in the woods. So students, actually this poem is based on some mystery, some supernatural elements and contains a great reasons behind the lost road which was closed by 70 years. So let's start. They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know. Actually, it begins with the mention of a road through the woods that was closed 70 years ago. Left undisturbed for such duration, weather and rain have undone the road, which means that the place where the road once existed has returned back to its state prior to the formation of the road. Means 70 ईयर्स पहले इस रोड को क्लोज कर दिया गया है, जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी रोड, जहाँ पे बहुत लोग आते जाते थे, उस रोड को क्लोज कर दिया गया है. 70 ईयर्स पहले की बात हो रही है ये. और इसके अंदर अब क्या हुआ है, वेदर एंड रेन, वेदर एंड टाइम टू टाइम वेदर और रेन की वजह से जो सारी की सारी रोड है वो बिल्कुल क्या हो गई है, पूरी की पूरी ढक चुकी है. उसके ऊपर हमें कोई भी ऐसे मार्क्स नहीं मिलते कि जिससे हमें देखने से पता चले कि ये यहाँ पर कभी रोड भी हुआ करती थी. There was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ring-dove broods and the buzzards roll at ease, there was once a road through the woods. Means there was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper says that where the ring-dove broods and the buzzards roll at ease, there was once a road through the woods. Means now no one could tell if there was ever a road through the woods. So no one could ever know about it because it has disappeared beneath the bushy undergrowth. It is now hidden away from the human eye and it can no longer be seen where it actually lay. Trees that were planted after the road was shut out from activity have grown up, and the road that existed there is now a part of the woods itself. Means रोड को देखने से कोई नहीं बता सकता कि वहाँ पर कभी एक रोड भी हुआ करती थी, बिकॉज वहाँ पे क्या लग चुके हैं, प्लांट्स आ चुके हैं, बुशेस आ चुकी है, छोटे छोटे स्मॉल ट्रीज वहाँ पे उग चुके हैं और वहाँ पे अनकवर्ड घास भी बहुत ज़्यादा वहाँ आ चुकी है. एंड थिन एनेमनीज, एनेमीज मीन्स प्लांट्स विद रेड वाइट और पर्पल फ्लावर, वहाँ पे रेड पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स भी उग चुके हैं. ओनली द कीपर सेज, कीपर कौन है यहाँ पे, जो उस फॉरेस्ट को या फिर जो उस वुड्स एरिया को देखता है, यानी जो उसको अवेयर है, उसकी हर उसकी एक्टिविटी को वो जानता है. सिर्फ वही ये देख सकता है दैट वेयर द रिंग डोव ब्रूड्स. ब्रूड्स एक्चुअली क्या होता है, ब्रूड्स होता है टू ले एग्स. एंड रिंग डोव क्या होता है, रिंग डोव एक्चुअली या वुड पीजन यू कैन से, और स्मॉल डोमेस्टिक डोव हम इसको बोलते हैं. दैट वेयर द रिंग डोव ब्रूड्स, सिर्फ जो उसका कीपर है उसको ये पता है कि कहाँ पे जो रिंग डोव है वो अपने अंडे दे रहा है.
एंड द बेजर्स रोल एट ईज। बेजर्स एक्चुअली एक एनिमल होता है, एक मैमल है जो ऑमनिवोरस होता है, ठीक है। ये भी रोल रोल करके घूमते घूमते बड़ा कंफर्टेबली वहां कहाँ घूम रहा है वो भी किसको पता है? सिर्फ जो वहां पर कीपर है सिर्फ उसको पता है ये बात, और किसी को नहीं पता है। They were once a road through the woods, कि कभी वहां पर एक जंगलों के बीच में कभी एक रोड हुआ करती थी, जो सिर्फ किसको पता है? उसके कीपर को पता है, जो वो शायद वहाँ की एम्बियंस से, वहाँ के एनवायरमेंट से, वहाँ की सराउंडिंग से वो नोन टू है, जिसको ये सब कुछ पता है। बट दैट रोड वॉज कांट बी सीन बाय द ह्यूमन बींग बिकॉज इट हैज बीन डिसअपियर्ड। क्लियर? एंड इट हैज बीन डिसअपियर्ड beneath the bushy undergrowth। वहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ उग चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह घास उगी हुई है, रोड का कहीं भी हमें कोई भी निशान नहीं मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट। Yet if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. It means if anyone goes and visit the woods, visit the forest in a late summer evening, he or she will come to know that there is more to the road. सिर्फ एक खाली जगह ही नहीं है वहाँ देखने के लिए, वहाँ पे उसको बहुत कुछ और भी देखने को मिलता है। And the night air cools above the pools that are full of trout fish, and the otter calls out to its mate. These creatures do not fear human presence because very few people enter the woods. Means अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पे समर इवनिंग में वहाँ पे वुड्स में जाता है तो उसको सिर्फ रोड के अलावा वहाँ बहुत कुछ उसको देखने को मिलता है। वहाँ पे बहुत ऐसी नेचर्स की क्वालिटीज़ उसको देखने को मिलती है। वो वहाँ पर क्या देखता है कि रात को ठंडी हवाओं के अंदर पानी में जो ट्राउट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फिश, जो ट्राउट फिश होती है वो यहाँ वहाँ पानी के अंदर रिंग गोल गोल घूम रही है। और जो ओटर होते हैं, ओटर एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ एनिमल लाइक दिस। यस, दिस इज ओटर। और जो ओटर होते हैं वो विस्लिंग करके अपने मेट्स में, अपने जो फ्रेंड्स है वो उसको बुला रहा है, बिकॉज उनको किसी भी ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे वुड्स में आने का डर नहीं है। किसी को ये नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग होगा, बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत कम लोगों को वहाँ पर देखा है। द एटमोसफेयर वुड बी मिस्टी, हो सकता है कि वहाँ का जो एटमोसफेयर थोड़ा धुंधला हो, सो दैट नो वन वुड नॉट बी एबल टू सी प्रॉपरली, इसलिए वहाँ पे कोई अच्छे से कुछ देख ना पाता। तो उन लोगों को लगता है कि वहाँ पर अब कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, दे कैन डू देयर एक्टिविटी, दे कैन प्ले देयर। क्लियर? नेक्स्ट, you will hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. Actually, in this para, the point want to convey is that you will hear the beat of a horse's feet. One could hear the trampling of a horse's feet when the horse is not physically present. पोइट कहता है कि वहाँ पे कोई भी हॉर्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आप फिर भी हॉर्स की जो ट्रैम्पलिंग की जो हुफ होती है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो। Perhaps it is a ghost from the past. पोइट कहता है शायद कोई ये घोस्ट हो। When the road was used by men on horseback, शायद ये पोइट पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि पोइट कहता है शायद कोई ये घोस्ट है और जो उस टाइम रोड को यूज करता था। One could hear the swish of a skirt moving amongst dew-covered grass. और यहाँ पे जो swish of a skirt एक्चुअली वुमेन के लिए यूज हुआ है, और जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि शायद जो वो हमारा हॉर्स राइडर है, शायद वो कौन थी, एक वुमेन थी जो हॉर्स के ऊपर बहुत स्पीड से, कैंटरिंग थ्रू का मीनिंग होता है कि बहुत तेज से वो चलती हुई घोड़े को दौड़ाती हुई आती है। बट
From these sounds, one could tell the difference that these people move in easy walk as if they perfectly knew where the road lay. और इन साउंड को सुन के पोइट कहता कि हम ये बता सकते हैं कि उन लोगों को ये मालूम था कि ये जो रोड है वो कहाँ जाती है. पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा पोइट. पोइट कहते कि इन पास्ट मे बी वन could tell the difference that these people move in easy walk as if they perfectly knew where the road lay. Even when a living person would not be able to distinguish it. लेकिन वो पॉइंट ये भी कहता है कि शायद जो ह्यूमन बीइंग जो लिविंग है यानी जो जिंदा इंसान है वो नहीं बता पाएगा इस डिफरेंस को, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर द रोड दैट वाज देयर 70 ईयर्स बैक. क्योंकि ये जो रोड थी वो कब की है, 70 ईयर्स पहले की बात बता रहा है वो पॉइंट, आज की बात नहीं कर रहा है. द पोइट स्टिल फील्स दैट देयर इज श्योरली नो रोड थ्रू द वुड्स. पोइट को अभी भी यही बिलीव है, विश्वास है कि कभी भी यहाँ पे कोई रोड हुआ करती थी, क्योंकि 70 ईयर्स पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट के अंदर हम उस रोड को देख के ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो रोड से कभी भी यूज होती थी. Actually, students, the poet suggests that the ghost of the dead person still rides in the place where the road used to be. He suggests that it is a woman on a horse with a long skirt that swishes the grass as the canters past. It could be a lover. वो कोई लवर, जो गोस्ट है वो लवर भी हो सकता है. Who is guarding the place, जो उस प्लेस को गार्ड कर रहा है, जो उस प्लेस की रखवाली कर रहा है, because he doesn't want any other human to step on the road. क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस रोड पे कोई भी और ह्यूमन बीइंग आए. Where his true love died, जहाँ पे उसका जो ट्रू लव है उसकी डेथ हो गई हो. यानी बहुत वो इमोशनल है, उसमें सेंटिमेंट्स है वो गोस्ट, लेकिन वो ये अज्यूम कर रहा है कि वहाँ पे उसके अलावा कोई और भी इंसान ना हो, चाहे वो गोस्ट हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, बिकॉज ही इज़ वेरी ट्रू फॉर हिज बिलव्ड. वो चाहता है कि उसके जो उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से वहाँ रहे, ताकि उसकी जो बिलव्ड है जिसकी डेथ हो चुकी है वो भी उसको फील करे. सो स्टूडेंट्स, actually this poem unfolds the past memories of little things that are missed by the poet, presented in flashback technique to the reader. जो हमारा पोइट है वो एक्चुअली पास्ट मेमोरीज को उसको क्या कर रहा है, उसको मिस कर रहा है और वो उसको प्रेजेंट में लाकर हम सबको, वी आर द रीडर्स, हम रीडर्स को वो फ्लैशबैक में लेके जा रहा है कि जो 70 ईयर्स पहले वहाँ होता था, वहाँ क्या हो रहा है, उस सब चीज़ों को उसने हमें क्या करवाया है, फील करवाया है. And the poet has used elements of the supernatural also. He has done so to emphasize a word that is lost. वो उस वर्ड को शो कर रहा है, उस वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा है जो लॉस्ट हो चुका है, वो आज नहीं है. Whose presence can only be felt like a ghost in the forest. जिसको हम सिर्फ फॉरेस्ट में एज अ गोस्ट को उसको उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम द वे थ्रू द वुड्स. जो 70 ईयर्स पहले रोड हमारी वेनिश हो चुकी थी, जिसको रेन ने और वेदर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ पे प्लांट्स आ चुके हैं, वहाँ पे कॉपी सूख चुके हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पर्पल ग्रीन वाइट कलर के फ्लावर आ चुके हैं, जहाँ जो उसका जो कीपर है ओनली ही कैन सी, वो सब कुछ चीज़ महसूस कर सकता है. एंड दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स, उसको ये पता है कि कहाँ पे जो रिंग डव है कहाँ पे वो ले एक्स कर रही है. एंड इवन द बेजर्स रोल प्लेफुली. क्लियर? एंड इफ एनीवन एंटर द वुड्स ऑफ समर इवनिंग लेट, ही कैन फील द ट्राउट रिंग पूल्स. Okay, and even otter whistles his mate because they don't have any fear for human beings. And even we can hear the horse feet. We can hear the trampling of the hoofs of the horse feet. Clear? These all about the poem. So this is very easy poem and interesting poem also. So if you find any problem, just discuss to me. Clear, students? So students, as you can see that the poem is made up of one stanza of 12 lines and another is of 13 lines. And the poet has chosen not to structure this piece with one particular rhyme scheme. Instead, there are instances of rhyme scattered throughout the lines. जो हमारा पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, उसने कोई भी राइमिंग स्कीम में एक पैटर्न चूज नहीं किया है. राइमिंग है लेकिन पूरे के पूरे 25 जो लाइन्स है वो यहाँ वहाँ पे सारी राइमिंग स्कीम स्कैटर्ड है, यानी बिखरी हुई है. कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है. मीन्स
No consistent rhyming scheme is followed throughout the two stanza of this poem. Okay, only end rhymes are common in a fair. End rhymes meaning हाँ कहीं कहीं पे जो end के words है वो similar है. But remember that rhyme is about sound more than sight. So do not be fooled when words do not look like their rhyme. जब भी आप राइमिंग वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हो तो आपको कभी भी ये नहीं देखना कि हमारी जो स्पेलिंग्स है वो सेम होनी चाहिए. नो, द साउंड्स आर मोर देन साइट्स. देखने से ज़्यादा जो हमारी साउंड जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है. सपोज फर्स्ट लाइन में भी है वुड्स, दिस इज ए. एगो डिफरेंट साउंड है तो उसको हम क्या देंगे, बी. सेकेंड वन अगेन डिफरेंट साउंड है, उसको हम क्या वर्ड देंगे, राइमिंग स्कीम क्या है हमारी ये, सी. उसके बाद नो, एगो नो, एगो नो, नो नो साउंड रिपीटिशन हो रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, बी. क्लियर. उसके बाद फिर से हमारा लास्ट वर्ड आता है वुड्स, अगेन ए. नेक्स्ट वर्ड ट्रीज, डी. कोई राइमिंग स्कीम नहीं आ रही है यहाँ पे. हीथ, ये अलग से वर्ड आ गया है तो इसको ई देंगे. फिर से एनिमनीज और ट्रीज, ट्रीज एनिमनीज सेम साउंड आ रही है ना यहाँ पर तो उसको हम देंगे डी. सीज एनिमनीज ट्रीज, डी डी डी. क्लियर. ब्रूट्स, ब्रूट्स ए, क्योंकि वुड्स की तरह ये साउंड करता है. ईज कोई साउंड नहीं करता ये. वुड्स फिर से हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया. तो राइमिंग स्कीम जो एंड ऑफ वर्ड्स के अंदर है लेकिन सारी स्कैटर्ड है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉलोइंग पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहा है. तो इसके अंदर राइमिंग स्कीम है लेकिन कौन सी राइमिंग स्कीम है, एंड राइमिंग राइम्स आर कॉमन. क्लियर. कोई भी कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम इज नॉट फॉलोड थ्रू आउट द टू स्टैंजास ऑफ दिस पोएम. क्लियर. So this is all about your poem. So student, now I am going to give a PDF of this chapter and question answer. ठीक है. Do it fair in your notebook.